Hello friends, welcome back to my channel Learn Easy. In this video, we are doing some extra questions related to the chapter Rational Numbers. So this video will be basically based on your NCERT along with NCERT exemplar, right? So if you like this video, please hit the like button and share this video with your friends. If you haven't subscribed my channel, please hit the subscribe button to get the updates. Let us start with the very first question. Pick up the rational numbers from the following numbers. As I can understand, now all of you must be worried about revising your first chapter, which is your rational numbers, right? So let us start from your higher mathematics. Pick up the rational number from the following numbers. So the rule for the rational number says that any number will be called a rational number if it is expressed in the form of a by b, where b is not equal to 0. यही हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है. रैशनल नंबर की, आई रिपीट, द डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर्स आर नंबर्स which are expressed in a upon b where b is not equal to 0. So if we are supposed to identify the which is a rational number, 6 by 7, yes it is a rational number. 1 by 2, minus 1 by 2, yes, whether it is negative or positive. So 6 by 7, yes, is a rational number, right? Talking about minus 1 by 2, yes, again it is a rational number. Talking about 0, yes, again 0 is a rational, because when there is no denominator, it means it has 1 in the denominator. I'm talking about d, 1 upon 0. So no, this is not a rational number because the denominator is equals to 0. That is the value of b is 0. Let me talk about the fifth one, 100 upon 0. So again, this is also no, it is also not the rational number. So I repeat, for all of you to understand rational numbers are the numbers which have the denominator not equal to 0, right? Okay, I hope everybody is solving along with me in their notebooks. Let's move to question number 2. Find the reciprocal of the rational numbers. Now, what is the concept of reciprocal? I would like to tell you about it here. So, reciprocal means if there is a fraction a by b. Rather, I will rephrase it as if I have a rational number a upon b, the reciprocal will become b upon a. That means denominator will be numerator and numerator will be denominator, right? So, I'm talking about minus 3 by 4. So, the reciprocal will become minus 4 upon 3, or you can also say it as minus 4 upon 3, right? Negative चाहे denominator में हो चाहे numerator में हो, it means the same, that the entire rational number is negative. If I talk about 0, so reciprocal of 0 remains 0, right? Moving to the C part, 6 upon 11. These are some of the extra questions from the basics, right? Those who missed the classes in the schools regarding rational numbers, they can check them out. 6 upon 11 मतलब 11 upon 6, रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को कर देंगे डिनोमिनेटर, राइट? 5 upon 9, so that is minus 9 upon 5. अब यहाँ पे you cannot write minus in, no, you cannot write this. Why? Because minus was there with 9, so we will take it with 9, right? Let's move to the next question number 3. Write two such rational numbers whose multiplicative inverse is same as they are. Multiplicative inverse is similar concept to the reciprocal. तो क्लास यहाँ पे हमारे पास दो आंसर्स आते हैं, -1 and 1. क्योंकि -1 का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करें, राइट, अगर हम -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करें, आई विल गेट -1 upon 1, ठीक है? एंड अगर सिमिलरली हम 1 का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करें, since there is nothing in the denominator, it is assumed to be 1, right? So it will also be 1 upon 1.
So these are the two numbers where the multiplicative inverse as they are. जो नंबर है वो ही multiplicative inverse है. ये बहुत बार आता है पेपर में, वाइवा में भी आता है ये क्वेश्चन. ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप्स जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आता है. ठीक है, चलो जी आते हैं, बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. करें स्टार्ट. ओके. What properties the following expressions show? तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है रैशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज के बेसिस पे. तो प्रॉपर्टीज हमारी रैशनल नंबर्स की होती हैं 4, जिसमें से मैं एक बारी लिस्टिंग कर देती हूँ हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज आती हैं. पहली हमारे पास क्लास होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट. दूसरी हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट. देन वी हैव इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, and then the fourth property is distributive property, right. तो ये 4 प्रॉपर्टीज होती है. हमको बताना है एक्सप्रेशंस में से कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू. फर्स्ट प्रॉपर्टी 2/3 प्लस, प्लस मतलब ऑब्वियसली एडिशन, प्लस 4/5. सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, a प्लस b is equal to b plus a. So this property is called commutative property of addition of whole numbers, right. So commutative property of addition over whole numbers. बात करें next की. So next is again if we assume this is a, this is b, so this is b into a. So this will become commutative. मल्टीप्लिकेशन है तो ओवर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. इन फर्स्ट में भी हम चेंज कर देंगे इसको रैशनल नंबर्स, राइट. रैशनल नंबर्स, राइट. क्लियर है, बड़े आगे. फिफ्थ क्वेश्चन, what is the multiplicative identity of rational numbers? Now multiplicative identity of rational numbers का मतलब है कि मैं ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं that I will get the answer as same. So one is the multiplicative identity. Coming to the additive identity, sixth question, what is the additive identity of rational numbers? So 0, anything multiplied with 0 will give the number itself, है ना. और मल्टीप्लिकेशन में कोई भी हम नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, right. So that means what is multiplicative identity? 1, and what is additive identity is 0. तो प्लीज इसे ध्यान रखें. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो हमें नंबर वापस मिल रहा है. जैसे आपने कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन 2/5, राइट. मैं आपके लोग के लिए सॉल्व करती हूँ. अगर मैं लेती हूँ 2/5, इफ आई मल्टीप्लाई इट बाय 1 आई विल गेट 2/5 ओनली. सिमिलरली अगर मैं एडिशन करती हूँ 2/5 को 0 से ऐड करूंगी तो मुझे वापस 2/5 मिलेगा, राइट. सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स is 1 and 0 respectively, right. Let's move forward to the seventh. If a is equals to 1/2, b is equals to 3/4, verify the following. तो ये हमारे को प्रॉपर्टी अब आ गई है वेरीफाई करना. ये थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट. पहला a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. ऐसे क्वेश्चंस को हम दो पार्ट्स में सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, राइट. Similarly for the second one also, a plus b, this will be our LHS, is equal to b plus a, so that is RHS. So हमें a की वैल्यू गिवन थी, right. Let me solve. a is 1/2 and b is 3/4. Here 3/4 into 1/2. So I will have to check whether the answer is same or not. Verify means to find whether LHS is equal to RHS or not. So 1 3s are 3, 2 4s are 8, 3 1s are 3, 4 2s are 8. So yes, verified,
है ना, LHS और इक्वल टू RHS आ गया। अगर हम बात करें 1/2 प्लस 3/4 की यहाँ पे एंड 3/4 प्लस 1/2, तो यहाँ पे हम LCM लेंगे 4 and 2 का 4, 2 plus 3 is 5/4. Here same procedure, 4 will be the LCM of 4 and 2, so 3 plus 2 is 5.4. So this is also verified. ठीक है, अब हमने क्या क्या वेरीफाई कर लिया इसमें, a इक्वल टू b इक्वल टू वैल्यूज गिवन थी, हमने a इंटू बी करा तो b इंटू ए के बराबर आ गया, और a प्लस बी करा तो b प्लस a आ गया। तो इसका मतलब है हमने क्या यहाँ पे वेरीफाई कर लिया क्लास, यहाँ पे हमने वेरीफाई करी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्लीज मेक अ नोट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। राइट, इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बढ़ते हैं आगे। 8th क्वेश्चन, मल्टीप्लाई 5/8 विद द रेसिप्रोकल ऑफ -3/8। सबसे पहले हम रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ -3/8 क्या हो जाएगा, 8/-3। अब हमको सॉल्यूशन करना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई 5/8 बाय क्या, रेसिप्रोकल। So 8 ones are 8, 8 ones are 8. So we've got chance 5 1 -3, or you can write it as -5/3, right? समझ आया कैसे किया, रेसिप्रोकल निकाला, मल्टीप्लाई करा, 8 ones are 8, 8 ones are 8, दोनों तरफ हमने कैंसिल किया, वी आर लेफ्ट विद 5/-3, साइन को शिफ्ट किया ऊपर, सो इट बिकेम -5/3। क्यों हमने साइन को शिफ्ट करा, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स कहता है कि साइन नेगेटिव होना अगर है रैशनल नंबर्स में तो वो ज्यादातर न्यूमरेटर की तरफ होना चाहिए, राइट। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन, फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। तो अब रैशनल नंबर ढूंढना है हमें दोनों नंबर्स के बीच में, तो ऑब्वियसली हम सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, 2 and 3 का एलसीएम लेने के लिए, सो दैट आई कैन मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो कैसे किया, 1/2 को हमने क्या करा कि हमारा 6 आए, इंटू 3, सेम नंबर न्यूमरेटर सेम नंबर डिनोमिनेटर, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। एंड 1/3 को करेंगे 6, 3 2 जा 1 2 जा 2/6 एंड, तो हमारी बात नहीं बनी, इन दोनों के बीच में कोई रैशनल नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई दीज टू विद अनदर नंबर। So let me take it with 36 with 2, तो 12 6 and 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, तो इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर आ गया 5/12। सो हमारा आंसर बन गया अरैशनल नंबर है, तो 6/12 एंड 4/12 के बीच में हमारे पास आ गया 5/12 इज वन ऑफ द रैशनल नंबर्स। ठीक है जी, आ गया दोनों के नंबर बीच में रैशनल, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 10th क्वेश्चन, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करना एंड पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव करना। सो 6/7 का बन जाएगा एडिटिव इनवर्स 6/7 एंड पॉजिटिव का बन जाएगा -101/213। कोई भी बच्चा इसका रेसिप्रोकल नहीं करेगा, एडिटिव इनवर्स, इनवर्स समझते ही बच्चे रेसिप्रोकल कर देते हैं, प्लीज डू नॉट रेसिप्रोकल। एडिटिव इनवर्स मतलब टू मेक द नंबर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। पहला हमारे पास रैशनल नंबर नेगेटिव था तो वी मेड इट पॉजिटिव, सेकंड हमारे पास रैशनल नंबर था पॉजिटिव, वी मेड इट नेगेटिव, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड तक देखो। वी आर लेफ्ट विद 12 क्वेश्चंस, सो rather we have 12 questions, so we are left with rather only 2 questions। चलो जी करेंगे इसको सॉल्व। आइडेंटिफाई द रैशनल नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। यहाँ पे 4 रैशनल नंबर्स आपको गिवन है, देखिए जी 2/3, -4/5, 1/2 एंड 1/3। अब आपको ये बताना है कौन सा नंबर डिफरेंट है, तो as it is clearly visible this number is totally different। why -4/5 is different from the other, explain using your reasoning। so I can say that it -4/5 it lies
ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ नंबर लाइन. नंबर लाइन होती है राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, राइट. लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन, वेयर एज बाकी सारे नंबर्स पॉजिटिव है, वेयर एज अदर नंबर्स lie on the right side, right. बाकी सारे नंबर्स कहाँ पे हैं? राइट साइड, है ना, राइट साइड ऑफ दी नंबर लाइन. इजी, आसान आसान क्वेश्चंस लिए मैंने सब बच्चों के लिए, सो दैट सब आराम बेसिक से स्टार्ट करें. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं होता बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे एकदम, जिससे आपको देखते ही एकदम समझ नहीं आए कि मैं कौन सा प्रोसीजर, कौन सा स्टेप, कौन से मेथड, कौन सा फॉर्मूला यूज करूं. इट्स इट कैन बी ब्रेनस्टॉर्मिंग आल्सो, ठीक है. ये क्वेश्चन सब बच्चों को आते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट स्टिल व्हेन इट कम्स इन योर वाइवा, व्हेन इट कम्स इन योर एग्जाम, यू फील afraid, right? So just to remove your scariness, I have used these questions. Coming to the last one, question number 12, calculate the following. अब इधर हमको करना है कैलकुलेशन. कैसे करेंगे देखो जी. सबसे पहले my very first step will be to identify, ये हमारी एक टर्म है, ये हमारी एक टर्म है, it is separated by the symbol called addition, ठीक है. सबसे पहले हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे क्या हमारे पास कोई टर्म सेम आ रही है. यस, बिल्कुल सेम आ रही है. तो हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव टर्म को, नेगेटिव टर्म को निकाल लेते हैं बाहर. तो पहली वाली में से हमारे पास बचा 3/7 प्लस, अब ऑब्वियसली जब हमने माइनस बाहर निकाला है तो हमारा 4/5 माइनस तो नहीं था, इंटीजर्स कहता है माइनस माइनस प्लस, तो हम क्या करेंगे, अपनी दूसरी टर्म को बना देंगे नेगेटिव, राइट. Once you make it negative, let me open the bracket, minus 3/7 and minus 4/5 into is equals to कैसे, minus 4/5 into 0, 3/7 minus 3/7, तो आंसर हमारा आ गया 0, राइट. बिल्कुल आसान था. आइए देखते हैं बी पार्ट. अब इसमें हमारे पास क्या सेम आ रहा है, कुछ भी सेम नहीं आ रहा, लेकिन शायद कुछ बात बन सकती है. हम लोग अगर देखें अगेन, हमारे पास ये दो टर्म्स हैं और यहाँ पे एडिशन से सेपरेट हो रही है दोनों टर्म्स, लेकिन 1/2 और 1/4 एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं, ठीक है. तो 1/2 निकालेंगे बाहर, 5/6 इज लेफ्ट प्लस, अब 1/3 के साथ हमारे पास एक चीज और बची है, एक 2 और बचा है. क्यों? क्योंकि 1/4 में से सिर्फ मैंने 1/2 निकाला था. दैट मीन्स मैंने 1/4 को ब्रेक कर दिया 1/2 और 1/2, तो 1/2 जो एक मैंने यहाँ यूज कर लिया और एक मैंने आगे यूज कर लिया. सो दैट इज 1/2 इंटू 5/6 प्लस 3 2 6, 5 plus 1 is 6/6, 1/2, 6 1 6 1, so I am left with answer as 1/2. तो प्लीज क्लास इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट दिख रहा है मुझे. प्लीज इस क्वेश्चन को स्टार बनाएं. ये ऐसे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट. समझ आया सब बच्चों को कैसे हमने कॉमन निकाला था 1/2, कैसे हमने 1/4 को ब्रेक किया. तो आप भी ऐसे ब्रेक कर सकते हैं. अगर आपको दिख रहा है कोई भी टर्म कॉमन नहीं आ रही, ऐसा हो नहीं सकता, कोई ना कोई जरूर उसका मल्टीपल एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसको आपको ब्रेक करनी पड़ेगी, राइट. सो thank you for watching this video, friends, and you can check the description box for various playlists. We have special maths playlist, we have class 6th NCERT solutions, class 7th NCERT solutions, and some topics on science. You can check the description box for the links. Thank you.